Hello everyone. Good morning to all. Yes, class. In today class we discuss chapter number 2. Our chapter name is Nutrition and Animals. This is very interesting chapter in your NCERT book. In previous class we started this chapter and we understand about the what is animal nutrition and what is digestion. Okay, I think you all understand this definition. Then after you understand this definition, then after you understand next points. Okay, so first in short we understand about the animal nutrition and digestion. Then after we take a new point as different way of taking food. First, what is animal nutrition? It includes the nutrient requirement and mode of intake of food and its utilization in the body. देखिए एनिमल न्यूट्रिशन क्या चीज होगी, जो भी बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो, एंड सेकेंड मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, कैसे फूड को इंटेक किया जाता है, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होने लग जाए, हम फंक्शन करने लग जाए उस फूड की एनर्जी के सोर्स से. So that all about the animal nutrition. Okay, next is digestion. Here is the definition of digestion. First we understand that look at this diagram. First is a complex substance. Complex substance means which thing is made up of some smaller substance. देखिए ये और आफ्टर द डाइजेशन ये जो सिंपलर सब्सटेंस है ये बीच से ब्रेक डाउन हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो ये बॉन्ड्स टूटकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, simpler substance. In previous class, I also understand this just example है complex substance is a glycogen. ठीक है, तो ग्लाइकोजन formed by a small glucose molecule. Many of small molecule combine together and form a glycogen. So glycogen is a complex substance and glucose is a simpler substance. Okay, when we intake a food have a protein, food have a carbohydrate, also a fat, vitamin, minerals. In last whenever digestion process is completed, so fat convert into a fatty acid, and fatty acid and glycerol, carbohydrate convert into a glucose, protein convert into amino acid, and vitamin and minerals are utilized our body and absorbed by our body. This is a simpler substance. So in last digestion, complex substance it convert into a simpler substance. So what is digestion process? Here is digestion process, the breakdown of a complex component. Complex component क्या होते हैं, इससे बिफोर हमने क्या पढ़ा, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं एज अ फूड. तो एज अ फूड सोर्स हम इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं. देन ये जिससे बने होते हैं, जैसे मैंने ग्लाइकोजन का एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन एग्जांपल लिया, तो ग्लाइकोजन मेड बाय a small glucose molecule. तो all glucose molecule they divided का बॉन्ड जो है वो बीच में टूट जाएगा थ्रू अ डाइजेशन प्रोसेस, एंड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डाइजेशन. ओके, तो आपको डाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्लियर हो रही है. द ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट of food into a simpler substance is called a digestion. Okay, so here we discuss about animal nutrition. तो फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. भाई मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, मे बी मैं कार्बोहाइड्रेट ईट करूं, फैट ईट करूं, प्रोटीन ईट करना है मुझे, लेकिन फर्स्ट थिंग क्या होगी, हाउ वेट आई टेकिंग फूड, मैं कैसे फूड को इनटेक करूंगी अपने अंदर. भाई अपन ह्यूमन बीइंग है, अपन थ्रू अ हैंड फूड को पिक करते हैं एंड माउथ के अंदर लेके जाते हैं, तो ये हमारा इनटेकिंग प्रोसेस है. जस्ट लाइक दैट क्या सभी एनिमल्स में सेम प्रोसेस चलता है? नो, all animals intake food in a different way. Okay, so the mode of taking food into the body in various organisms. Bee and hummingbird suck the nectar. Bee and hummingbird क्या करते हैं, suck करते हैं नेक्टर को. नेक्टर, व्हाट इज नेक्टर? फ्लावर के अंदर एक न्यूट्रिशन, एक जूसी चीज होती है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, जिसकी स्मेल के थ्रू जो इंसेक्ट्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो नेक्टर ऑफ अ प्लांट इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन के, वो मिल्क कैसे सक करके बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं ना. एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, और बाकी एनिमल्स भी हैं जो अपनी मदर मिल्क को एज अ फीड करते हैं. स्नेक लाइक अ पाइथन स्वेलो, आपने देखा स्नेक सक कर रहा है या स्नेक च्यूई कर रहा है, नहीं होता ना, वो डायरेक्ट अपने फूड को क्या करता है, स्वेलो करता है. Animal prey upon some aquatic animal filter tiny food particle floating nearby and feed upon them. जो floating particles हैं जो water के अंदर इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनको एज अ फिल्टर करके अपने माउथ के अंदर फूड को इनटेक करते हैं. ओके,
Okay, so here is some examples of animal how they intake food. Okay, so first one is snail. What is a snail eat? I think snail eat an insect and maybe some small plants, some small animals, है ना. How it is scraping the food by a chitinous structure. जो snail है ना, उसके टीथ नहीं होते, chitinous structure होता है उसके माउथ में, उनके थ्रू उसको क्या करता है, स्क्रैप करके खुरच कर खाना खाता है. ठीक है. Next, ant, as we all know what ant eat: sugar, grain, food particle, anything we eat, whatever we eat, ant will eat. क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं इधर उधर थोड़ा बहुत गिरता है, हम देखते हैं चींटियां उसको खाती हैं, है ना. तो बाइटिंग के थ्रू, च्यूइंग के थ्रू, मोड ऑफ फीडिंग क्या है? बाइटिंग एंड च्यूइंग. ईगल, ईगल क्या, स्नेक, रैट, चिक्स, इन सबको और कैसे ईट करता है? कैप्चरिंग द एग. सबसे पहले अपने खाने को कैप्चर करता है, देन अपनी हुक्ड बीक से उसको ईट करता है. देन नेक्स्ट है हमिंग बर्ड. थ्रू अपन ने पढ़ लिया, नेक्टर ऑफ फ्लावर इसका फूड होता है, और सकिंग नेक्टर, एक लॉन्ग बीक होती है उसके थ्रू सक करती है हमिंग बर्ड. ठीक है. एंड नेक्स्ट लाइस, ब्लड ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. लाइस जो होती है ह्यूमंस के ब्लड को सक करती है एंड अदर एनिमल्स को करती है. और सकिंग ब्लड ऑफ स्कैल्प, स्कैल्प में जो प्रेजेंट होती है तो स्कैल्प के ब्लड से वहां से सक करती है. मॉस्किटो, एंड मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो भी ब्लड ऑफ एनिमल, ये भी सकिंग करता है एक थिन लॉन्ग ट्यूब से. एंड बटरफ्लाई आल्सो सक करने का काम करती है, फ्लावर्स का नेक्टर ईट करती है. हाउस फ्लाई जो है शुगर, फूड, गार्बेज इधर उधर यहाँ से खाना इकट्ठा करती है. एंड स्पॉन्जिंग अप द फूड इन लिक्विड फॉर्म, अपने माउथ से कुछ ऐसी लिक्विड को सिक्रेट करती है जिससे जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. देन वो उसको सक करके बॉडी के अंदर इंटेक करती है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अमेजिंग फैक्ट कि हाउ स्टारफिश इनटेक आवर फूड. तो स्टारफिश क्या करती है, हाउ स्टारफिश इनटेक आवर फूड, ए वेरी important way and very interesting way also. Starfish feed on animal covered by a hard shell of calcium carbonate. जो starfish है ना, उसकी पूरी बॉडी का जो कवरिंग है वो हार्ड शेल का बना होता है, जो which is made up by कैल्शियम कार्बोनेट. जो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है. आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब उसको खाना होता है तो ये शेल क्या होती है? ओपन होती है. देन स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक. तो स्टारफिश क्या करती है? अपने स्टमक को बाहर की तरफ निकालती है थ्रू इट्स माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. एंड देन ही कैप्चर करते हैं अपने फूड को, देन इनसाइड द शेल अपने वापस स्टमक के वापस शेल के अंदर आ जाता है. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड दैट food is swallow digested. Okay, I think clear हुआ आपको. तो starfish take its foods in amazing way. Starfish is a example sea animal है which have a hard shell of calcium carbonate. Starfish open the hard shell of its prey and push up on stomach and through mouth and prey shell. prey जो है mouth के through वापस stomach के साथ में अंदर चला जाता है. The stomach wrap around the soft animal inside the shell. Starfish then take its stomach back along with the captured from inside its body for digestion. Okay, क्लियर. तो इस तरीके से स्टारफिश अपने फूड को इनटेक करती है. ठीक है. तो फर्स्ट हमने डेफिनेशन में क्या रीड किया था? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है. सेकंड हमने रीड कर लिया मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे फूड को इनटेक किया जाता है. देन यूटिलाइजेशन आवर बॉडी. देखिए हमारी बॉडी तभी यूटिलाइजेशन करेगी देन डाइजेशन इज कंप्लीटेड. ओके, डाइजेशन कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट आवर बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टिव फूड जूसेस. ओके, so now we start a new point is digestion in humans. Okay, and we take in food through the mouth. हम food कैसे intake करते हैं? माउथ के थ्रू intake करते हैं ना. then digest and then utilize, ये process चलता है. first we intake through the mouth food through our mouth and then digest it in our stomach and small intestine and large intestine also. and unused part जो food होता है is defecated, इसको feces के through body से बाहर pass out कर दिया जाता है. and जो food digest हो जाता है उसको हमारी body के through utilize किया जाता है. first we divided our digestion parts in या कंटिन्यूस कैनाल जो पूरी प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन डाइजेस्टिव कैनाल. ओके, तो ये सब एक ही नाम है. ये इसको हम पहले
इसके कंपार्टमेंट्स पढ़ते हैं भाई, इस पूरी पार्ट्स में क्या क्या नेम है। तो फर्स्ट buccal cavity. What is buccal cavity? Between our teeth one cavity is here, जहां पर हम फूड को च्वी करते हैं, है ना। तो दिस इज अ बक्कल कैविटी, जहां से फूड को च्वी किया जाता है माउथ के अंदर का पार्ट, ठीक है, लिप्स के अंदर का पार्ट, नेक से पहले का जो पार्ट होता है, इट इज अ बक्कल कैविटी। ओके, देन आफ्टर ए लॉन्ग फूड पाइप इज हियर, ये जो बीच का सेंटर पार्ट है देखो, ये दिस इज माउथ and this whole part is buccal cavity. Okay, and one long tube like structure is called a food pipe also and esophagus also. दोनों name है, food pipe and esophagus. Then third, stomach, ये C shape and J shape structure, look at here, this is a stomach. Okay, then it join a large tube that is called a small intestine. What I said, small intestine. Small intestine joined by a large intestine. ठीक है, small intestine, then large intestine. Large intestine का last part is a rectum and anus. ठीक है, जिसे undigested food part जो होता है वो body के बाहर pass through किया जाता है. Okay. So now we repeat the various compartments. First one is buccal cavity, second is esophagus, third stomach, small intestine and large intestine, and ending of large intestine is rectum, and last is a anus. Is it not a very long path? ये बहुत लंबा पाथ नहीं होता. This part together from a alimentary canal. ये सारे पाथ जो हैं, ये सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं, इन सबको साथ में हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. यू लर्न बोथ नेम. If I said you draw the diagram of alimentary canal, so you draw this diagram also. ठीक है. Next I said you draw the diagram of digestive tract, so you draw this diagram. I said you draw the human digestive system, you draw this diagram. Okay, so don't be confused about that. Okay, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेम से. तो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल डायग्राम्स आर दिस. ठीक है, आई थिंक आपको सबके नेम क्लियर हो गए होंगे. The food component gradually get digested as food travel through the various compartments. जो भी food हम intake करते हैं, it gradually, ऐसा नहीं है माउथ में जाते ही डाइजेस्ट हो गया, स्टमक में जाते ही डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है. हर पार्ट में ग्रेजुअली जो हमारा फूड है डाइजेस्ट होता रहता है एंड ट्रेवल करता रहता है वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट. ओके, द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal such as salivary gland. अभी जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जो हमारा माउथ हो गया या बक्कल कैविटी हो गया, स्टमक हो गई, लीवर हो गया, मे बी सॉरी क्या कहते हैं इंटेस्टाइन हो गई, तो इन सब के अंदर वेरियस टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. तो वो ग्लैंड्स कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज सैलाइवरी ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी. ठीक है, सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर buccal cavity. Okay, and liver and pancreas secrete the digestive juices. लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं? ये भी एक टाइप की ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करती हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को. दिस डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प अस टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम करते हैं? भाई सैलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, एंड लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है. तो वो हेल्प क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट into a simpler one. Complex substance को simpler substance में convert करने का help करते हैं. Okay, the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब ये जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ में हम ग्लैंड्स की भी बात करते हैं, तब हम इसको पूरे को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. नाउ ये वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स हाउ इट इज फंक्शन टुगेदर वी डिस्कस अबाउट इट. Okay, now let us know what happened to the food in different parts of the digestive tract. अब ये जो digestive tract है, buccal cavity, stomach, intestine, how it is work, कैसे ये work करते हैं, we discuss here. Okay, first one is the mouth and the buccal cavity.
जो माउथ है या बक्कल कैविटी है, हाउ इट इज फंक्शन. So the mouth and the buccal cavity, food is taken into the body through the mouth. The process of food into the body is called the ingestion. ये food को intake करना, ये जो process होता है, it is called the ingestion. It is called the ingestion. Ingestion definition, I repeat this definition. The process of taking food into the body. हमारी body के अंदर food को intake करना, this process is called the ingestion. ओके और जैसे ही हम फूड इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू अंदर इनटेक करते हैं तो देन क्या होता है, हमारे वहां पर क्या प्रेजेंट है, टीथ. ऐसा तो नहीं है हम खाना खाते सीधे स्टमक में पहुंच गया, नहीं होता ना ऐसा. तो हमारे बक्कल कैविटी में व्हाट टू थिंग्स आर देयर. फर्स्ट वन इज टीथ एंड सेकंड इज टंग. फर्स्ट वन इज टीथ एंड सेकंड वन इज टंग. तो फर्स्ट वी chew the food with the help of teeth and break it down mechanically into a small pieces. तो हमारे माउथ में जैसे ही फूड जाता है तो क्या व्हाट हैपन, द टीथ क्या करते हैं, टीथ ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को. जैसे हम थोड़ा बड़ा पीस खाते हैं माउथ में तो वो लार्ज पीस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में मैकेनिकली डिवाइड कर देते हैं. ओके तो ये हमारे टीथ के काम है. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट. और ये तो टीथ है, ये हमारे माउथ के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट. इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. ठीक है, ये 4 टाइप के टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इंसाइजर टीथ बाइटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन टीथ टीयरिंग में हेल्प करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर टीथ हेल्प टू ग्राइंड एंड कटिंग द टीथ, कटिंग द फूड को ग्राइंड करने में एंड कटिंग करने में हेल्प करते हैं. ओके so here is the arrangement and here we discuss about the each tooth is rooted in a separate. so हर tooth एक separate socket के अंदर हमारे jaw में या gums में situated होता है, fix होता है. our teeth vary in appearance and perform different function. जो हमारे mouth के अंदर teeth जो 4 टाइप के teeth हैं वो सब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरीके से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, next activity, wash activity 2.2. wash your hand, look into your mirror and count your teeth. use your index finger to feel the teeth. how many kinds of teeth could you find? take a piece and apple, bread and eat it. which teeth do you use the biting? आप ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करें, हाथ को अच्छे से क्लीन करें. पहले तो अपने टीथ को काउंट करें, देन आफ्टर आप बताएं कि कौन सा विच वन इज पियर्सिंग एंड टीयरिंग, मतलब कौन सा चबाने के लिए या काटने या फाड़ने के लिए, या टीयरिंग में कौन सा हेल्प करता है. तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कौन सा होता है, इंसाइजर. piercing and tearing teeth, canine. and chewing and grinding teeth, molar and premolar. okay now next one is our mouth has a salivary gland which secretes saliva. हमारे माउथ के अंदर मैंने बताया ना बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है, salivary glands प्रेजेंट होती है. look at this diagram. here is salivary glands. ठीक है, salivary gland कहाँ पर, जॉ के लोअर पार्ट में, टंग के नीचे की तरफ एंड अपर जॉ के पीछे की तरफ 3 प्लेसेस पे जो है salivary gland प्रेजेंट होते हैं. salivary gland का काम क्या है, it secrete a saliva. it secrete a saliva. salivary gland secrete a saliva. do you know the action of saliva on food? let us find out what is the function of saliva. तो saliva का क्या function होता है बेटा. next thing is we not discuss about the tongue. tongue क्या करती है, हमारे फूड को मिक्स करने का काम करती है. किस चीज को मिक्स करती है, हमारे माउथ से salivary gland जो सलाइवा सिक्रेट होता रहता है, और जो टीथ जो हमारे फूड को बिग साइज ऑफ फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते रहते हैं. तो टीथ टंग की हेल्प से सलाइवा जो है हमारे फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ रैप होता रहता है. ठीक है, तो हियर इज वी डिस्कस अबाउट दैट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा. फंक्शन क्या है सलाइवा का, तो फंक्शन देखिए हम फूड के अंदर क्या क्या ईट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब चीजों को ईट करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल क्या है, स्टार्च. ओके तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का जो 70% फंक्शन है वो कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो मोस्टली 60 to 70% कंप्लीटेड इन आवर माउथ.
फर्स्ट वी और हमने छोटी क्लासेस में 6th क्लास में भी हमने रीड किया था स्टार्च के टेस्ट के लिए आयोडीन सॉल्यूशन को, है ना। सेम वही चीज हम यूज करेंगे। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट हम 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने, लेबल ए एंड बी। हमने फर्स्ट ए लेबल किया एंड सेकंड को बी लेबल कर दिया। ओके, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, बॉइल्ड राइस को रख दिया। ओके, एंड देन we keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing। अब हमने 1 चम्मच बॉइल्ड राइस अपने माउथ में ली एंड देन प्रॉपर्ली च्यूई किया, और टंग ने उसमें क्या किया, सलाइवा को मिक्स किया, और उसको च्यूई करने का काम हम 3 to 5 मिनट अपने माउथ के अंदर करते हैं। ओके, देन हम उसको अंदर एनगल्फ नहीं करना है, स्वेलो नहीं करना है, हमें उसको वापस बाहर निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालना है। तो ये बी टेस्ट ट्यूब जो है ना, उसमें हमने च्यूई किया हुआ, हमारे माउथ में च्यूई किए हुए राइस को यहाँ पर प्लेस किया। देन वाटर ऐड किया, एड 3 and 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। देखिए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या है भाई, बॉइल्ड राइस है, उसको डायरेक्ट हमने उसमें प्लेस किया एंड सेकंड को च्यूई करके अपने माउथ में च्यूई करके फिर उसको सेकंड टेस्ट ट्यूब में प्लेस किया। ओके, देन 3 to 4 ml हमने वाटर ऐड किया। नाउ पोर 2 and 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, है ना, हमने क्लास 6 में भी ये टेस्ट किया था। ओके, आपको फूड में ध्यान होगा। तो जो आयोडीन है, इट व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च, आयोडीन जो है रिएक्ट करती है स्टार्च के साथ में, तो इट टर्न इनटू अ ब्लू ब्लैक कलर, इट टर्न इनटू अ वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर या वॉयलेट कलर में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम दोनों ड्रॉप्स में ड्रॉपर की हेल्प से 2 and 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व करते हैं। Why is there a change in color in the test tube? क्या दोनों में चेंज हुआ कलर का? तो दैट मीन्स हम तो देर में वेट करके चेक करते हैं। तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो हमने देखा कि जो हम बॉइल्ड राइस डायरेक्टली हमने लिए थे, वी एड सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, देन वी रिजल्ट क्या हुआ, इट टर्न इनटू अ ब्लू ब्लैक कलर बिकॉज starch is present in the boiled rice। starch present है boiled rice में। when we chew our rice and put it in the test tube and add 3 and 4 ml of water, and then after we add some 2 and 3 drop of iodine solution, then after we observe what we observe, no color change, no blue black color is here। why? because when we chew the rice, all starch is converted into a sugar। तो starch present नहीं है, तो iodine की property क्या है, when it react with the starch it turn into a blue black color। when no starch is there, तो why it is turned into any color? so it is not happen, this process not happen। so second test tube not change into a blue black color, that means starch is not there। वहां पर क्या नहीं है, starch नहीं है। that means it prove our saliva, our mouth saliva break down the starch into a sugar। तो break down कर देती है किसके अंदर, starch को sugar में। and the tongue is a fleshy muscular organ। ये fleshy और muscular होता है। tongue के अंदर आप देखते हैं बोन नहीं होती, सिर्फ मसल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये बैक में फ्लोर में बक्कल कैविटी के पीछे की तरफ अटैच होती है एंड फ्रंट साइड इसका फ्री होता है। कैन बी मूव्ड इनटू ऑल डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन में मूव हो सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? we use our tongue for talking, and beside it mixes saliva with the food during chewing and help in swelling the food। तो यहाँ पर 3 फंक्शन दिए टंग के। व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन? विदाउट, अगर हमारी टंग नहीं हो तो हम बोल भी नहीं पाए, है ना। और सेकंड, इट मिक्स सलाइवा विद फूड, ये फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स करती है। सेकंड फंक्शन हो गया कि हमारे फूड का टेस्ट बताती है। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन हो गया कि इट हेल्प इन स्वेलो फूड, फूड को निगलने में हमारी टंग बहुत हेल्प करती है। और जो टंग हमारे को हेल्प करती है किसमें, टेस्ट बताने में फूड के, तो इट हैव अ टेस्ट वर्ड। जो हमारी टंग होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट वर्ड है इनका फंक्शन क्या होगा, ये हमारे फूड में जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, स्वीट, चार एंड बिटर, सॉल्टी, इन सब चीजों को बताता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये वाला, इट रिप्रेजेंट है स्वीट, ये स्वीट टेस्ट को, मीठे टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, और इसके पीछे का जो पार्ट है उसको वो क्या शो करता है, सॉल्टी टेस्ट को एक्सप्लेन करता है, हमें मतलब फील करवाता है कि यहाँ पर कैसा टेस्ट है, सॉल्टी। ओके, देन हियर इज शॉर्ट
एंड लास्ट इज अ बिटर। यहाँ पर कौन सी टेस्ट बड होती है? बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो जो 4 टेस्ट है हमारी टंग उनको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। टंग जो है कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फूड पाइप, to discuss in next class. Okay.